Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So, I welcome you again to your psychology class, and we are doing chapter number 3, that is meeting life challenges. This is part 5 of this chapter, and if you have not seen the previous parts, you can check the link in the description box. In this video, we'll discuss about sources of stress, stress and health, and examination anxiety. So let's get started, and first of all let's discuss about the sources of stress. Stress is an unavoidable part of life. However, it is normal and to some extent it is necessary part of life. Despite it being something everyone experiences, what causes stress actually can differ from person to person. मीन्स स्ट्रेस जो है वो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, बट स्ट्रेस के कॉजेज़ जो हैं वो वेरी कर सकते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के लिए बस में ट्रैवल करना बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है, और वहीं दूसरी तरफ जो है किसी और के लिए बस में ट्रैवल करना एक नॉर्मल सिचुएशन हो सकती है जिससे उसको कोई स्ट्रेस नहीं होता. ओके, एक्चुअली देयर आर नंबर ऑफ इवेंट्स, सिचुएशंस एंड कंडीशंस दैट कैन जनरेट स्ट्रेस. बट आपकी बुक में 3 मेजर सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस दिए हुए हैं जो हैं लाइफ इवेंट्स, हैसल्स एंड ट्रॉमेटिक इवेंट्स. तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद लाइफ इवेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल. अब सबसे पहले जानते हैं कि लाइफ इवेंट्स होते क्या हैं. लाइफ इवेंट्स आर बेसिकली डिफरेंट एक्सपीरियंसेस और चेंजेस दैट डिस्टर्ब एन इंडिविजुअल्स यूजुअल एक्टिविटीज़, causing an important change and readjustment. Means life events हमारी लाइफ के वो changes और experiences होते हैं जो हमारी लाइफ को disturb कर देते हैं और हमारी पूरी लाइफ को change कर देते हैं. Okay? Now it's very important to note here that these life events can be both positive as well as negative. मीन्स हमारी लाइफ के पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चेंजेस दोनों ही कहीं ना कहीं स्ट्रेस जनरेट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल लूजिंग योर नियर और डियर वन, तो ये ऑब्वियसली एक नेगेटिव लाइफ इवेंट है जो स्ट्रेस जनरेट करेगा ही. ऑल राइट, बट इसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव लाइफ इवेंट्स भी होते हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस, कुछ लेवल का स्ट्रेस होता है, लाइक गेटिंग अ प्रमोशन. तो एक पॉजिटिव लाइफ इवेंट है, बट आपकी प्रमोशन हुई है, आपको खुशी हो रही है, यू आर वेरी हैप्पी, एंड बिसाइड्स दिस कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस भी होगा कि आई हैव टू वर्क इन अ बेटर वे नाउ. ओके, so we can say that even the happy events of life usually result in the experience of some form of stress. मतलब कुछ लेवल का स्ट्रेस होता है चाहे वो इवेंट्स हैप्पी इवेंट्स हों. एक्चुअली इट इज़ द चेंज दैट इज़ स्ट्रेसफुल, इज़न्ट इट. मतलब जो चेंज होता है हमारी लाइफ में वो स्ट्रेसफुल होता है जब हमें नई सिचुएशन फेस करनी पड़ती है. एंड मोर ओवर चेंजेस बोथ बिग एंड स्मॉल, सडन एंड ग्रेजुअल affect our life from the moment we are born, isn't it? And we learn to cope with small everyday changes. But major life events can be stressful because they disturb our routine and can cause change. Now the next source of stress that is given in your book is hassles. Hassles means difficulties or problems. Okay. Now the major question that arises here is that what is actually the difference between life events and hassles? Because you must be thinking that hassles are also life events. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन लाइफ इवेंट्स एंड hassles. Actually, life events include major events of life like divorce, death of a loved one, or losing your job. Whereas daily hassles are minor in comparison, like noisy surroundings, quarrelsome neighbors, electricity and water shortage, traffic snarls, and so on. And these daily hassles may sometimes have devastating consequences for the individual who is often the one coping alone with them, as others may not even be aware of them as outsiders. Now the last source of stress that is given in your book is traumatic events. Traumatic means distressing, disturbing, shocking or upsetting events. Okay. तो अगर हम ये वर्ड देखें ट्रोमैटिक, तो ये किस वर्ड से बना है? ट्रॉमा से. एंड ट्रॉमा जो है ये वर्ड बड़ा कॉमनली यूज़ किया जाता है आजकल. एंड क्या मीनिंग है इसका? इट मीन्स कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट. ठीक है.
मीन्स कोई भी इवेंट जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स अ पर्सनस एबिलिटी टू कोप। मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट या सिचुएशन है वो कि जो हमारी कोपिंग एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। मतलब हम वो सिचुएशन से डील ही नहीं कर पाते। Actually, traumatic events may include train or road accident, robbery, earthquake, cyclones, etc. Okay, and the effects of these events may occur after some lapse of time and sometimes persist as symptoms of anxiety, flashbacks, dreams, and intrusive thoughts, etc. And severe trauma can also strain relationships. Professional help will be needed to cope with them, especially if they persist for many months after the event is over. मीन्स जो ट्रोमेटिक इवेंट्स हैं दे आर क्वाइट कॉमन एंड दे आर ऑब्वियसली वेरी डिस्ट्रेसिंग एंड जो कुछ लोग हैं वो मीन्स दे रिकवर ऑन देयर ओन, अपने आप जो है वो ओवरकम कर पाते हैं वो उन ट्रोमेटिक इवेंट्स से। बट कुछ लोगों में ट्रोमेटिक इवेंट्स के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आई मीन लॉन्ग टर्म में भी देखने को मिलते हैं। मीन्स आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो they feel anxiety, depression, or flashbacks, all right, and it can lead to mental health issues such as PTSD, that is post traumatic stress disorder, जिसके बारे में आप डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में भी करोगे, all right. So these were the three sources of stress that are given in your book, okay, and now we'll move on to the next topic, that is stress and health. मतलब स्ट्रेस और हेल्थ में क्या रिलेशनशिप है। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उससे वी कैन कंक्लूड दैट स्ट्रेस जो है ऑब्वियसली इट इफ़ेक्ट्स आवर हेल्थ इन सम और द अदर वे, राइट। एंड आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा, देखा होगा अपने आसपास कि कई लोग जो होते हैं, जैसे कि अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो कई स्टूडेंट्स जो होते हैं एग्ज़ामिनेशन टाइम में बीमार पड़ जाते हैं, लाइक दे सफ़र फ्रॉम स्टमक अपसेट्स, बॉडी एक्स, डायरिया एंड फीवर एक्सेट्रा, ठीक है। एंड आप लोगों ने ये भी देखा होगा जो लोग जनरली अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते, खुश नहीं होते, वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं इन कंपैरिजन टू पीपल हु आर हैप्पी in their personal lives, isn't it? Actually, chronic daily stress can divert an individual's attention from caring for himself or herself. अब chronic stress क्या होता है? Chronic stress is basically long term stress जो कभी ख़त्म ही नहीं होता और आप जिसको avoid भी नहीं कर सकते, like the stress of having a bad marriage or a bad job. ओके तो ये मतलब कुछ सिचुएशंस हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते और उसका स्ट्रेस आपको मे बी लाइफ टाइम रहेगा, ओके। एंड एज वी डिस्कस्ड इट अर्लियर ऑल्सो दैट इस क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं हमारा इम्यून सिस्टम इफ़ेक्ट होता है एंड इसके साथ साथ जो है हमारी जो है हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है and it may lead to development of certain cardiovascular disorders, high blood pressure, as well as psychosomatic disorders including ulcers, asthma, allergies and headaches, okay. अब जो ये chronic stress है उसके अंडर we feel exhausted. Exhausted means we feel tired physically, emotionally as well as mentally, okay. अब जो physical exhaustion है उसके symptoms हैं like chronic fatigue, वीकनेस एंड लो एनर्जी, एंड मेंटल एग्जॉशन के सिम्टम्स हो सकते हैं लाइक इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी, फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस, एंड इमोशनल एग्जॉशन के सिम्टम्स हो सकते हैं लाइक हेडेक्स, चेंज इन एपेटाइट, नर्वसनेस, लैक ऑफ मोटिवेशन, डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेशन एंड सो ऑन, ओके। एंड दिस स्टेट of physical, emotional and psychological exhaustion is known as burnout. मीन्स अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइफ से थक चुके हो, आपको अपनी जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, आपकी परफॉर्मेंस लो जा रही है, तो मतलब ये कुछ साइंस हैं बर्नआउट के, ओके। And apart from all this, it has been proved in researches that stress plays an important role in 50 to 70% of all physical illnesses. And studies also reveal that 60% of medical visits are primarily for stress-related symptoms. तो मतलब यहाँ पे हम ये conclude कर सकते हैं कि जो stress है that is an unavoidable part of our lives. We cannot avoid stress.
बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उस स्ट्रेस से डील कैसे करना है। ये भी हम आगे इस चैप्टर में करेंगे। ऑल राइट, now we'll discuss one important topic that is given in your book in box 3.2, and it is very important from examination point of view, and the topic itself is examination anxiety. एंड ये एक बहुत ही जनरल टॉपिक है, आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो। एंड इस टॉपिक में बेसिकली बताया गया है कि एग्जामिनेशन एंग्जाइटी होती क्या है, क्या क्या इसके रीजंस हैं और कैसे आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले जानते हैं कि एग्जामिनेशन एंग्जाइटी होती क्या है। एग्जामिनेशन एंग्जाइटी इज़ अ फेयरली कॉमन फिनोमिना दैट इन्वॉल्व्स फीलिंग्स ऑफ टेंशन और अनईजीनेस दैट अकर बिफोर, during or after an examination, and many people experience feeling of anxiety around examinations and find it helpful in some way, as it can be motivating and create the pressure that is needed to stay focused on one's performance. Examination nerves, worry or fear of failure are normal for even the most talented student. मीन्स एग्ज़ामिनेशन एंग्जाइटी एक टेंशन और अनईजीनेस की फीलिंग होती है जो एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के दौरान और एग्ज़ाम के बाद फील होती है, और ये बड़ी ही कॉमन काइंड ऑफ एंग्जाइटी है। हम सबको होता है एग्ज़ामिनेशन एंग्जाइटी, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड स्टूडेंट क्यों ना हो, एग्ज़ामिनेशन एंग्जाइटी उसको भी होगी। ओके, और जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो एग्ज़ामिनेशन एंग्जाइटी जो है बहुत मोटिवेटिंग प्रूव होती है, एंड विद दैट लेवल ऑफ एंग्जाइटी दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट, ओके, टू एक्सेल बेसिकली। ओके, however, stress of formal examination results in such high degrees of anxiety in some students that they are unable to perform at a level which matches the potential they have shown in less stressful classroom situations. मीन्स कुछ स्टूडेंट्स तो उस एग्ज़ामिनेशन एंग्जाइटी को ओवरकम कर लेते हैं, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए वो एग्ज़ामिनेशन एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है जो उनके रिज़ल्ट को भी इफ़ेक्ट करती है। मीन्स आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मीन्स क्लासरूम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्कूल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट जब वो बाहर जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं, तो उनकी वो परफॉर्मेंस वो शो नहीं कर पाते हैं, मतलब दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ एग्ज़ामिनेशन एंग्जाइटी। ओके, एक्चुअली एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड एज इवैल्यूएटिव apprehension or evaluative stress and produces debilitating behavioral, cognitive and physiological effects no different from those produced by any other stressor. मीन्स एग्ज़ामिनेशन एंग्जाइटी को इवेल्युएटिव एप्रीहेंशन और इवेल्युएटिव स्ट्रेस भी बोला जाता है। तो मतलब एप्रीहेंशन क्या है? एप्रीहेंशन मीन्स एंग्जाइटी और फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लेजेंट विल हैपन, मतलब आपको लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है या होगा। ठीक है, तो मतलब स्ट्रेस बेसिकली है क्या? इट इज़ अप्रेजल, मीन्स इवेल्युएटिंग द सिचुएशन। तो मतलब एग्ज़ामिनेशन एंग्जाइटी कुछ नहीं है, एग्ज़ामिनेशन एंग्जाइटी है मीन्स एप्रीहेंडिंग द सिचुएशन, एप्रीहेंडिंग और इवेल्युएटिंग द एग्ज़ामिनेशन सिचुएशन। हम कैसे अप्रेज करते हैं उस सिचुएशन को। ओके, मीन्स इफ़ यू आर फुली प्रिपेयर्ड, आपके पास नोट्स बने हुए हैं, पूरा साल आपने मेहनत की है, पूरा साल आप पढ़े हो, अच्छे नंबर लिए हैं आपने टर्मिनल एग्ज़ाम्स में, तो मतलब अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है तो वो एक एंग्जाइटी मोटिवेटिंग फैक्टर है जो आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकता है। ओके, और दूसरी ओर अगर आप पढ़े ही नहीं हो तो वो एग्ज़ामिनेशन एंग्जाइटी जो है ऑब्वियसली आई मीन दैट विल बी डिस्ट्रेसफुल। ओके, मीन्स जो ये एग्ज़ामिनेशन एंग्जाइटी है ये किसी भी दूसरे स्ट्रेसर की तरह है जो कि मतलब आपके बिहेवियर को, आपके कोग्निशन को, आपके फिजियोलॉजी को इफ़ेक्ट करती है। ओके, and high stress can interfere with the student's preparation, concentration and performance. Examination stress can cause test anxiety which adversely affects test performance. And persons who are high in test anxiety tend to perceive evaluative situations as personally threatening. In test situations, they are often tense, apprehensive, nervous and emotionally aroused. Moreover, the negative self-centered cognitions which they experience distract their attention and interfere with concentration during examinations.
मीन्स स्ट्रेस जो होता है एग्जामिनेशन टाइम पे इट लीड्स टू एग्जामिनेशन एंजाइटी, और वो इफ़ेक्ट करता है स्टूडेंट की प्रेपरेशन, कंसंट्रेशन एंड परफॉर्मेंस को। ओके एंड जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं एग्जामिनेशन टाइम पे, वो बेसिकली उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव हो जाते हैं, मतलब बुरे बुरे ख्याल उनके दिमाग में आने लगते हैं कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, नर्वस हो जाते हैं, इमोशनली राउज्ड हो जाते हैं, रोने लगते हैं, ठीक है, या मीन्स दे इमोशनली फील वेरी वीक एट दैट टाइम। ओके, so this is basically examination anxiety, causes and symptoms of examination anxiety। and इसके साथ साथ आपकी बुक में कुछ steps दिए हुए हैं that you can follow to overcome this examination anxiety। Like while preparing for examinations, one must spend enough time for study, overview and weigh one's strengths and weaknesses, discuss difficulties with teachers and classmates, plan a revision timetable, condense notes, space out revision periods, and most importantly on the examination day, concentrate on staying calm। मीन्स एग्ज़ामिनेशन टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है आप पढ़ें, ठीक है, एंड इसके साथ साथ जो आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, मींस जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आते हैं या जिसमें आप बहुत ज़्यादा वीक हो, वो आपको पता होने चाहिए, ताकि जो आपके टॉपिक्स वीक हैं वो उसको आप ज़्यादा टाइम दे सकें, ज़्यादा टाइम रिवाइज़ कर पाएँ उसको, ठीक है। एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने टीचर्स के साथ रेगुलरली डिस्कस करो, अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करो, टाइम टेबल बनाओ अपना जिसको आप फॉलो करके मीन्स यू कैन यूटिलाइज योर टाइम वेल। ओके, एंड अपने नोट्स जो हैं वो कंडेंस करो। कंडेंस मीन्स शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाओ जो कि जल्दी से आप रिवाइज कर सकते हो पेपर से पहले, ठीक है। एंड स्पेस आउट रिवीजन पीरियड्स मीन्स अलग अलग टाइम पीरियड्स बनाओ अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए फॉर योर रिवीजन। And the most important thing is that paper wale din be cool and calm. Don't take tension or don't be anxious. Okay. So these were some of the tips and tricks that are given in your book, and you can definitely follow them to overcome examination anxiety. And let me ask you one question: how do you deal with your examination anxiety? अब anxiety तो सबको होती है, examination anxiety, चाहे वो कितना भी intelligent बच्चा क्यों ना हो, ठीक है। तो मतलब आप लोग कैसे डील करते हो एग्जामिनेशन एंजाइटी से, क्या करते हो आप लोग जब आपको एंजाइटी होती है? Do let me know through the comment section below. I would love to hear it from you. Okay? So आज के लिए हम इतना ही करेंगे, and we'll continue with this chapter in our next video in which we'll discuss about general adaptation syndrome given by Hans Selye. So till then, take care all of you. Stay home, stay safe, and thank you so much for watching.